میرا نام ڈاکٹر عفان ہے۔ کہتے ہیں کہ مرد ہو یا عورت، اسے زندگی میں ایک نہ ایک دن محبت ضرور ہوتی ہے۔ وہ دن اس کی زندگی میں کبھی بھی آ جاتا ہے اور کبھی بھی آ سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محبت کا وقت وہی ہوتا ہے جب انسان جوان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن میں نے زندگی میں یہ دیکھا کہ ایسا ضروری نہیں۔ ہر انسان کے دل میں ایک نقشہ بنا ہوتا ہے، ایک ایسا تصور ہوتا ہے، ایک ایسا چہرہ ہوتا ہے جس سے وہ دل ہی دل میں محبت کرنا چاہتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محبت ہمیشہ خود سے بہتر انسان سے ہوتی ہے۔ اکثر معاملات میں یہ بات درست بھی ثابت ہوتی ہے، اگرچہ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ تصور، وہ چہرہ، وہ انسان سامنے آ جاتا ہے، دل خود بخود اس کی طرف کھنچ جاتا ہے۔ اب وہ انسان جوانی میں سامنے آئے یا ادھیڑ عمر میں یا زندگی کے آخری حصے میں یا پھر کبھی سامنے ہی نہ آئے، یہ سب الگ الگ صورتیں ہیں۔ ہر ایک کی اپنی کہانی ہوتی ہے۔ میری کہانی کچھ مختلف تھی۔ جب میں نیا نیا جوان ہو رہا تھا، مجھے کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی۔ میں ان لڑکوں میں شامل تھا جن کی کبھی کوئی گرل فرینڈ نہیں رہی تھی۔ میں نے کالج میں بھی تعلیم حاصل کی، میں نے یونیورسٹی میں بھی پڑھائی کی، میں ڈاکٹر بن گیا۔ اس کے بعد میں نے عملی زندگی شروع کی۔ اب میں ایک بڑے ہسپتال میں خدمات انجام دے رہا تھا۔ میرے ساتھ بہت سی خواتین بھی کام کرتی تھی، لیکن سچ یہ ہے کہ مجھے کبھی کوئی اچھی نہیں لگی۔ کبھی کسی نے اس طرح دل پہ اثر نہیں ڈالا۔ میری فیملی گاؤں میں رہتی تھی، میں خود شہر میں رہتا تھا۔ یہاں میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں اکیلا رہتا تھا۔ میں ایک بڑے ہسپتال میں اچھی سروس دے رہا تھا۔ وقت کے ساتھ میرا اچھا نام بن گیا، میں پیسے بھی کما رہا تھا۔ زندگی بظاہر بہتر لگ رہی تھی، لیکن دل کے اندر ایک کمی تھی۔ وہ چہرہ جسے دیکھ کے دل یہ کہہ اٹھے کہ بس اب میں اسی کا ہوں، وہ چہرہ، وہ احساس، وہ محبت ابھی تک میری زندگی میں نہیں آئی تھی۔ یہ میری کہانی کا پہلا حصہ ہے اور شاید یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ میری دو بہنیں تھیں، ایک مجھ سے بڑی تھی اور ایک مجھ سے چھوٹی تھی۔ بڑی بہن کی شادی ماں باپ نے وقت پہ کر دی، چھوٹی بہن کی شادی میں خود کروا چکا تھا۔ اب گھر میں صرف میں ہی رہ گیا تھا، بابا اس دنیا میں نہیں تھے۔ ماں گاؤں میں رہتی تھی، میں نے بھی گاؤں میں ہی پرورش پائی تھی۔ ماں کے سارے رشتہ دار بھی گاؤں میں ہی رہتے تھے، بابا کے سارے رشتہ دار بھی گاؤں میں ہی آباد تھے۔ میں ڈاکٹر تھا، میری زندگی کا زیادہ تر وقت ہسپتال میں گزرتا تھا۔ میرے پاس سانس لینے کا بھی وقت نہیں ہوتا تھا۔ ڈیوٹی، ایمرجنسی، مریض، یہ سب کچھ میری روزمرہ زندگی بن چکا تھا۔ اس سب کے باوجود 6-7 مہینے بعد میں گاؤں کا چکر ضرور لگاتا تھا، ماں سے ملنے کے لیے، اپنے گھر کو دیکھنے کے لیے، اپنی جڑوں کو محسوس کرنے کے لیے۔ لیکن جیسے ہی میں گاؤں پہنچتا، ماں کی ایک ہی بات ہوتی تھی، شادی کب کرے گا؟ شروع میں وہ ہلکے انداز میں پوچھتی تھی، پھر آہستہ آہستہ اس سوال میں فکر شامل ہو گئی، اور پھر وہ فکر دعا بن گئی۔ ماں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو ہمیں بتا دے، ہم خود جا کے بات کر لیں گے یا وہیں اس سے شادی کر لے۔ اکیلے رہ کے اکیلا نہیں رہنا چاہیے۔ ماں کہتی تھی کہ انسان کے ساتھ کوئی ہو جو اس کے لیے کھانا بنائے، جو اس کے کپڑے دھوئے، جو اس کا گھر صاف کرے، جو اس کا انتظار کرے۔ وہ کہتی تھی ہمیں معلوم ہے اب تو گاؤں تم نہیں رہ سکتے، تمہاری دنیا شہر بن چکی ہے، تمہارا کام وہی ہے، تمہاری زندگی وہی ہے، لیکن زندگی اکیلے نہیں گزاری جاتی نا، کسی کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ اپنی زندگی بنا لو۔ ماں کی زندگی کا اکلوتا مقصد یہی تھا کہ اس کے بچوں کی شادیاں ہو جائیں۔ وہ مقصد پورا ہو چکا تھا۔ بابا اس دنیا میں نہیں تھے، گھر بن چکا تھا، زمینیں موجود تھیں، زمینوں سے ٹھیکہ آتا تھا، دکانوں سے کرایہ آتا تھا۔ میں بھی شہر سے اچھے خاصے پیسے بھیجتا تھا، بہنوں کا بھی خیال رکھتا تھا، ماں کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی تھیں۔ ماں کی زندگی میں اب بس ایک ہی خواہش باقی رہ گئی تھی کہ میرا نکاح ہو جائے۔ اس سے زیادہ ایک عورت کی کیا سوچ ہو سکتی ہے؟ ماں تو زندگی جی چکی تھی، انہوں نے بہت اچھی زندگی گزاری تھی۔ بیٹے کو ڈاکٹر بنایا تھا، بیٹیوں کی شریف خاندانوں میں شادیاں کی تھیں۔ ماں کو اب اور کیا چاہیے تھا؟ بس یہی چاہتی تھی کہ میں بھی اپنی زندگی بسا لوں۔ جب بھی میں گاؤں جاتا، میں خود بھی یہی سوچتا کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ لیکن اسی سوچ کے ساتھ میرے ذہن میں ایک سوال بھی آتا کہ اتنا انتظار کرنے کے بعد اگر مجھے ارینج میرج ہی کرنی تھی تو میں یہ کام پہلے ہی کیوں نہ کر لیا؟ میں نے اتنے سال کیوں گزار دیے؟ میں نے اتنی تنہائی کیوں برداشت کی؟ میں نے اتنی خاموش راتیں کیوں کاٹی؟ شاید اس لیے کیونکہ میں محبت کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا آئے جسے دیکھ کے دل خود بول اٹھے۔ روزانہ میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا اور خود سے سوال کرتا، وہ کون ہے جو تیرے دل کو اچھی لگے گی؟ حقیقت یہ تھی کہ میری کوئی خاص شرط نہیں تھی۔
मैं ये नहीं चाहता था कि लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, कोई हूर हो, कोई परी हो, कोई गैर मामूली चेहरा हो। ऐसा कुछ भी मेरे ज़हन में नहीं था। मुझे लंबे बालों का भी कोई ख़ास शौक नहीं था। जैसे कुछ मर्दों को लंबे-लंबे बाल पसंद होते हैं, मुझे ऐसी कोई ज़िद नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं लड़की कमज़ोर होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, पेट अंदर होना चाहिए। एक डॉक्टर होने के नाते ये बात अच्छी तरह समझता था कि पेट का बाहर निकलना औरत के लिए कोई गुनाह नहीं। मैं एमबीबीएस डॉक्टर था, मैं औरतों की जिस्मानी साख्त को समझता था। मैं उनके मसाइल से वाकिफ़ था, इसलिए अगर कोई औरत दरमियानी जिसामत की होती या उसका वज़न थोड़ा ज़्यादा होता या उसका पेट निकला हुआ होता तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरे लिए सब मामूली बातें थीं। फिर मुझे खुद नहीं मालूम कि ऐसी क्या बात थी कि कोई मुझे पसंद ही नहीं आती थी। हालाँकि मेरे मेयार भी बहुत कम थे, शायद मसला मेयार का नहीं था, शायद मसला दिल का था। दिल किसी को कबूल ही नहीं कर रहा था, दिल किसी के लिए हाँ ही नहीं कह रहा था, और यही बात मेरी माँ नहीं समझ पाती थी, और शायद मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था। यही वो दौर था जब मैं बज़ाहिर कामयाब था, लेकिन अंदर से खाली था। ये मेरी कहानी का दूसरा हिस्सा था, और उस खालीपन ने आने वाले दिनों में मेरी ज़िंदगी का रुख बदल देना था। एक दिन मुझे नाइट ड्यूटी करने का कह दिया गया। मैंने बिल्कुल भी झगड़ा फसाद ना किया, ना कोई बहस की, ना कोई शिकायत की। आमतौर पे नाइट ड्यूटी पे डॉक्टर परेशान हो जाते थे। ज़्यादातर सबके घर बार थे, बीवी बच्चे थे, रात का वक्त वो अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहते थे, ये फितरी बात थी। लेकिन मैं फैमिली वाला नहीं था, मेरे लिए रात और दिन में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, इसलिए मैंने कोई वावेला ना किया। मैंने बस इतना कहा कि ठीक है, नाइट ड्यूटी आसान नहीं होती, लेकिन लोग अक्सर इसे गलत समझते हैं। नाइट ड्यूटी का मतलब ये नहीं होता कि डॉक्टर पूरी रात जागता रहे। अस्पताल में एक कमरा होता है, उसमें एक बेड रखा होता है, उस बेड पे मरीजों को लिटा के चेक किया जाता है। उसी बेड पे डॉक्टर को भी सोने की इजाज़त होती है। मैं उस कमरे में जाके लेट सकता था, सो सकता था, लेकिन शर्त ये थी कि अगर किसी वक़्त इमरजेंसी आ जाए, कोई मरीज़ आ जाए या कोई नर्स आके जगा दे तो मुझे फ़ौरन उठना होता था। ना नर्सेज़ पूरी रात जागती हैं, ना डॉक्टर। लेकिन मुश्किल ये होती है कि बार-बार नींद से उठना पड़ता है। आँखें खुलते ही खुद को सँभालना पड़ता है। चेहरे पर वही संजीदगी लानी पड़ती है जैसे आप बिल्कुल सोए हुए ही ना हों। उस रात मैं गहरी नींद में था कि मुझे अचानक उठाया गया। नर्स ने आके बताया कि एक इमरजेंसी केस आया है। मुझे बताया गया कि एक जवान लड़की है जिसे नमूनिया हो गया है। वो अपनी 2 सहेलियों के साथ आई है, लगता है कहीं हॉस्टल में रहती हो। मौसम भी बहुत सर्द था, सर्दी हद से ज़्यादा थी। ऐसे मौसम में नमूनिया होना कोई अनोखी बात नहीं थी। मैंने कहा ठीक है, मैं उठ के बैठ गया, चेहरे पर पानी के छींटे मारे खुद को थोड़ा फ्रेश किया। इसी दौरान नर्स मेरे लिए कॉफ़ी ले आई। मेरी नर्स बहुत अच्छी थी। वो मेरा ख़्याल रखती थी, मेरी थकन को समझती थी। उसका नाम मरियम था। वो खामोश मिजाज थी, अपना काम जानती थी, बिला वजह बातें नहीं करती थी। खैर, लड़की के साथ जो औरतें आई थीं वो बाहर ही बैठ गईं और मरीज़ा को अंदर भेज दिया गया। मैंने उसे कहा कि आप लेट जाएं, मैं आपको चेक करता हूँ। नमूनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ सांस का चेकअप होता है। सांस में अगर गैर मामूली आवाज़ें हों, जिसे विजिंग कहा जाता है, तो बीमारी संगीन हो सकती है। अगर नमूनिया फेफड़ों पे पड़ जाए तो ये खतरनाक साबित होता है, इसलिए मुझे पूरी तवज्जो से मुआयना करना था। जैसे ही मैंने उस लड़की की तरफ देखा, मैं चंद लम्हों के लिए रुक सा गया। वो नीली आंखों वाली लड़की थी। पाकिस्तान में नीली आंखें बहुत कम देखने को मिलती हैं। पूरी दुनिया में भी नीली आंखों वाले लोग कम होते हैं। कहा जाता है कि सिर्फ चंद फीसद लोग ऐसे होते हैं, और मेरे सामने नाइट ड्यूटी के कमरे में एक नीली आंखों वाली लड़की मौजूद थी। वो सिर्फ नीली आंखों वाली नहीं थी, बेहद खूबसूरत थी, दुबली पतली, उसके नक्श निगार मुकम्मल थे। उसका रंग साफ और गोरा था, बाल लंबे थे, कमर पतली थी, हाथ पांव बहुत साफ थे। उसकी उंगलियां बारीक थीं, ऐसी बारीक जैसे किसी मुसव्विर ने वक्त लेके बनाई हो, और उसकी आंखों में एक अजीब सा सहर था, ऐसा सहर जो सीधा दिल में उतरता है। मैंने खुद को संभाला। मैं डॉक्टर था, मेरे सामने एक मरीज थी, मुझे अपना काम करना था। मैंने उसका चेकअप किया, उसके सीने की आवाज़ें सुनी, सांस की रफ्तार देखी, बुखार के बारे में पूछा। मैंने उससे पूछा कि आपको सर्दी कैसे लगी। उसने अपना नाम खुशबू बताया, और वाकई उसके नाम की तरह उसे एक बहुत हल्की, बहुत नरम, बहुत दिलकश खुशबू आ रही थी। उसे कहा कि उसे खुद भी नहीं मालूम कि सर्दी कैसे लग गई। मैंने पूछा कि क्या आप हॉस्टल में रहती हैं? उसे हाँ में सर हिला दिया। मैंने कहा कि हॉस्टल में ठंड ज़्यादा होती है, खुला इलाका होता है, इसलिए अपना ख्याल रखा करें। उसे बात करते हुए ये भी बताया कि उसकी कमर में बहुत दर्द रहता है। मैंने कमर दर्द के बारे में भी पूछा, चंद सवाल किए और कहा कि मैं आपको दवाई लिख देता हूँ।
मैंने उसे दवाइयाँ लिख दी, नमूनिया के लिए भी और कमर दर्द के लिए भी। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकूं, लेकिन इलाज के दौरान बातों की एक हद होती है। आप जितना भी चाहें पेशा वराना दायरे से बाहर नहीं जा सकते। मैंने वही सवाल किए जो ज़रूरी थे, कि कहीं और दर्द तो नहीं, क्या पहले कोई दवाई ली, क्या किसी और डॉक्टर को दिखाया। वो हर सवाल का जवाब नरमी से देती रही, फिर वो उठ के चली गई। दरवाज़ा बंद हुआ, कमरा फिर से खामोश हो गया, लेकिन वो लड़की मेरी आंखों से नहीं गई और ना ही मेरी यादों से। मैं दोबारा बेड पे लेटा, आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। नीली आंखें, लंबे बाल, वो सहर, वो खुशबू, सब कुछ मेरे अंदर कहीं ठहर गया था। ये पहली बार था कि किसी को देख के मेरे दिल में कुछ हल्का सा हिल गया। और मैं ये बात उसी वक्त समझ गया कि ये रात सिर्फ एक नाइट ड्यूटी नहीं थी, ये मेरी ज़िंदगी के किसी नए बाब की खामोश शुरुआत थी। और जब हम नए नए जवान हो रहे थे ना, तो एक फ़िल्म आई थी, कल हो ना हो। उस फ़िल्म का एक गाना था, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। 2-4 दिन से लगता है ऐसे सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है। वही गाना उसी रात से मेरे अंदर बजना शुरू हो गया। मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये कब शुरू हुआ, लेकिन अचानक मेरे दिल की रफ्तार बदल गई। वही अस्पताल जहाँ मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा था, जो मेरे लिए सिर्फ एक इमारत था, सिर्फ एक जगह थी जहाँ मैं आता था, काम करता था और वापस चला जाता था। वही अस्पताल अचानक मुझे अच्छा लगने लगा। वही राहदारियाँ, वही दीवारें, वही वार्ड, वही नर्स स्टेशन, सब कुछ बदल गया। या शायद मैं बदल गया। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे दुनिया में सब कुछ अच्छा है, जैसे हर इंसान खुश है, जैसे हर किसी के पास उसकी मोहब्बत मौजूद है। मैं जब किसी शादीशुदा जोड़े को देखता तो मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा होता। मैं रश करने लगा था। मुझे लगता था कि ये लोग कितने खुश होंगे, एक दूसरे के साथ हैं, घर जाके एक दूसरे की बाहों में सिमट जाते होंगे, साथ बैठ के खाना खाते होंगे, दिन भर की बातें करते होंगे। हालांकि मैं ये बात इससे पहले भी जानता था और अब भी जानता था कि अगर पाकिस्तान में 10 शादीशुदा जोड़ों को देखा जाए तो शायद उनमें से एक भी वाकई खुश ना हो। लेकिन अजीब बात ये थी कि अब मुझे ये सब मालूम होने के बावजूद सब कुछ अच्छा लग रहा था। असल में बात दुनिया की नहीं होती, बात दिल की होती है। जब दिल में दुख भरा हुआ हो तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ही दुख में डूबी हुई है, और जब दिल में खुशी भर जाए तो ऐसा महसूस होता है कि हर इंसान खुश है, हर चेहरे पर मुस्कुराहट है। मुझे खुशबू से मोहब्बत हो गई थी। ये वो मोहब्बत थी जिसे लोग लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं। एक ही नज़र में किसी को पसंद आ जाना, एक ही नज़र में दिल का हार जाना और उस पर यकीन वही लोग करते हैं जिनके साथ ये हो चुका होता है। मैं उन लोगों में शामिल हो गया था। मुझे इस बात पे यकीन आ गया था कि क्योंकि मेरे साथ ये सब हो चुका था, मुझे खुशबू से मोहब्बत हो गई थी। मैं उसके बारे में सोचना भूल ही नहीं पा रहा था। उसकी आंखें, उसकी मुस्कुराहट, उसकी आवाज़, उसकी खुशबू, सब कुछ मेरे साथ साथ चल रहा था। लेकिन एक सवाल मुझे मुसलसल परेशान कर रहा था, मैं उसे दोबारा कैसे मिलूंगा। मैंने उसे ये कहा था कि अगर आराम ना आए तो 1 हफ्ते बाद दोबारा आके चेकअप करवा लीजिएगा। लेकिन 1 हफ्ता मुझे सदियों जितना लंबा लग रहा था। अगर वो 1 हफ्ते बाद आती भी तो क्या ये 1 हफ्ता मैं गुजार पाता? अगर वो ना आई तो फिर मैं क्या करता? ये सोच मेरे दिल को खाए जा रही थी। वैसे ही सोच में था कि अचानक मुझे अस्पताल का एक असूल याद आ गया। हमारे अस्पताल में जब भी कोई मरीज आता है तो उससे उसका नाम, घर का पता और फ़ोन नंबर ज़रूर लिखवाया जाता है। उसी बुनियाद पर उसकी फ़ाइल बनती है। मैंने अपनी नर्स से पूछा, वो जो रात को पेशेंट आई थी, क्या तुमने उसकी फ़ाइल बनाई थी? मरियम ने फ़ौरन जवाब दिया, जी जी बिल्कुल बनाई थी। उसे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर मैं फ़ाइल ना बनाती और रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ हो जाती तो आपको पता है ना फिर क्या होना था। आजकल वैसे भी कितने उल्टे सीधे केस हो रहे हैं, हर किसी का रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। उसकी बात सुन के मैंने सुकून का सांस लिया। मैंने कहा, अच्छा तो उसकी फ़ाइल मुझे ला के दे दो। मरियम ने कोई सवाल ना किया, वो अंदर गई और चंद लम्हों बाद फ़ाइल मेरे सामने रख दी। मेरे हाथ हल्के से कांप रहे थे। मैंने फाइल खोली, उस पर उसका नाम लिखा हुआ था, खुशबू, फ़ोन नंबर भी दर्ज था और घर का पता भी। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। ये डिफेंस का पता था, डिफेंस की किसी कॉलोनी का। मैं लम्हा भर के लिए खामोश हो गया। इसका मतलब वो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन उसी लम्हे मेरे दिल ने एक और बात भी कही कि अगर वो गरीब घर से होती तो क्या मैं उससे मोहब्बत ना करता? नहीं, अब तो मैं मोहब्बत के रंग देख रहा था। मोहब्बत न दिन देखती है, न रात, न शक्ल, न उम्र, न गोरा देखती है, न काला, बस हो जाती है। और जब हो जाती है तो इंसान खुद को भी भूल जाता है। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं अकेला नहीं रहा।
हालांकि हकीकत में मैं अब भी अकेला था, लेकिन दिल के किसी कोने में कोई आके बैठ चुका था और वो जगह अब खाली नहीं रही थी। अब मेरे पास उसका नंबर भी आ चुका था। फाइल में साफ साफ लिखा हुआ था, नाम भी, पता भी और फ़ोन नंबर भी। लेकिन अजीब बात यह थी कि नंबर होने के बावजूद मेरा हाथ आगे नहीं बढ़ रहा था। मैं बार बार यही सोच रहा था कि अगर मैंने इसी तरह मैसेज कर दिया या कॉल कर दी तो मैं कितना बुरा लगूंगा। वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? क्या वो ये समझेगी कि मैं कोई लोफर हूँ या कोई आम सा आदमी जो मरीजों का डाटा गलत इस्तेमाल करता है? ये ख्याल आते ही मेरा दिल डूब सा जाता था। मैं खुद से कहता था, नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं डॉक्टर हूँ। मैंने सारी ज़िंदगी एक असूल के साथ गुजारी थी। मैंने कभी किसी औरत के साथ गलत नज़र से बात नहीं की थी, न कभी किसी का फ़ायदा उठाया था। तो फिर अब मैं क्यों ऐसा करूँ? नंबर होने के बावजूद मैं खामोश रहा। एक और बात जो मुझे मुसलसल रोक रही थी, वो ये थी कि ये भी तो मुमकिन है कि वो नंबर उसका अपना ना हो। हो सकता है जल्दी में उसने अपनी अम्मी का नंबर लिखवा दिया हो, या फिर जो 2 औरतें उसके साथ आई थीं वो उसकी बहन और माँ हों या बहन और भाभी हों। ऐसे में अगर मैं कॉल करता और फ़ोन किसी और ने उठा लिया तो मैं क्या जवाब देता? मैं क्या कहता कि मैं वही डॉक्टर हूँ जिसे नाइट ड्यूटी में चेक किया था? ये सोचते ही मेरे अंदर एक झिझक सी पैदा हो जाती। मैं खुद को समझाने लगता कि सब्र करो, जल्दबाजी मत करो। मैंने आखिरकार यही फैसला किया कि मैं 1 हफ़्ता इंतज़ार करूँगा। मैंने उससे खुद कहा था कि अगर आराम ना आए तो 1 हफ़्ते बाद दोबारा आ जाना। निमोनिया कोई मामूली बीमारी नहीं होती, ना ही जल्दी ठीक होती है। ज़्यादा इम्कान यही था कि वो दोबारा आएगी। ये सोच मेरे लिए उम्मीद बन गई, लेकिन इसी उम्मीद के साथ एक और अजीब सा एहसास भी जुड़ा हुआ था कि अगर वो दोबारा आती तो उसका मतलब ये होता कि वो अभी तक तकलीफ़ में है, वो अभी बीमार है, और ये सोच मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मैं ये भी नहीं चाहता था कि वो तकलीफ़ में हो सिर्फ़ इसलिए कि मैं उसे दोबारा देख सकूँ। ये कैसी मोहब्बत थी जो एक ही वक्त में खुशी भी दे रही थी और तकलीफ भी? मैं खुद हैरान था। मैंने खुद से सवाल किया, क्या मोहब्बत इतनी जल्दी असर कर जाती है? क्या एक ही मुलाकात, एक ही नज़र, एक ही लम्हा इंसान को इस हद तक बदल सकता है? मेरी सोच, मेरी आदतें, मेरा रवैया, सब कुछ बदलने लगा था। मैं जो कभी किसी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था, अब एक नाम, एक चेहरा, एक खुशबू मेरे दिन रात पे छा गई थी। मैं नाइट ड्यूटी पे बैठा होता और बार बार मेरे जहन में वही आंखें आ जाती। मैं मरीज़ चेक कर रहा होता लेकिन दिल कहीं और होता। मैंने ज़िंदगी में बहुत बार लफ्ज़ मोहब्बत सुना था, बहुत कहानियाँ पढ़ी थीं, बहुत बातें सुनी थीं, लेकिन अब मुझे पहली बार इस लफ्ज़ का वज़न समझ आ रहा था। ये मोहब्बत मुझे पागल कर रही थी और मैं इस पागलपन से डर भी रहा था। लेकिन इसके बावजूद मैं इस एहसास को छोड़ना नहीं चाहता था। मैंने नंबर होने के बावजूद खामोश रहने का फ़ैसला किया, और उस 1 हफ़्ते का इंतज़ार मेरी ज़िंदगी के सबसे तवील दिनों में बदल गया। 1 हफ़्ता नहीं, पूरे 2 हफ़्ते गुज़र गए। खुशबू उस हस्पताल में दोबारा ना आई। हर गुज़रता दिन मेरी उम्मीद को थोड़ा-थोड़ा कम करता जा रहा था। शुरू में मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद वो ठीक हो गई हो, शायद दवाई ने असर दिखा दिया हो और उसे दोबारा आने की ज़रूरत ही ना पड़ी हो। फिर एक और ख़्याल दिल में आया जो पहले ख़्याल से ज़्यादा तकलीफ़ देता। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इतनी बीमार हो गई हो कि अब उसे अस्पताल भी ना लाया जा रहा हो। ये सोच मेरे दिल को अंदर से काटने लगी। मैं डॉक्टर था, मैं बीमारों को जानता था, मैं निमोनिया की संगीनी को समझता था, लेकिन उस वक्त मैं एक डॉक्टर नहीं था। मैं सिर्फ एक आशिक था, दिल के हाथों मजबूर हो चुका था। मैंने ये बात अपने करीबी दोस्त को बता दी। वो भी मेरे साथ ही काम करता था। रात की ड्यूटियाँ, इमरजेंसी केस, सब हमने इकट्ठे देखे थे। जब मैंने उसे कहा कि मुझे मोहब्बत हो गई है तो वो हैरान रह गया। उसने मुझे देखा और मुस्कुरा के बोला, लड़की बड़ी खुशकिस्मत है। मैंने आहिस्ता से कहा, वो बेमिसाल है, मुझे उसकी आंखों से मोहब्बत हो गई है। वाकई ज़्यादातर लोगों को आंखों से ही मोहब्बत होती है। आंखें चेहरे का आधा हुस्न होती हैं, उनमें एक दुनिया छुपी होती है। खामोश बातें, अनकही कहानियाँ, खूबसूरती तो होती ही है, और मैं उसी खूबसूरती का असीर हो चुका था। मैंने दोस्त को बताया कि औरत की आंखें और औरत के बाल, ये 2 चीज़ें ही मर्द को अपनी तरफ खींच लेती हैं, और मैं भी इसी कशिश का शिकार हो गया था। वो खामोशी से सुनता रहा। फिर उसने कहा, तो अब क्या सोचा है? मैंने जवाब दिया, मैं उसके घर जा रहा हूँ। ये कहते हुए मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने खुद से कहा, अब मेरी उम्र ये नहीं कि मैं महीनों फ़ोन पे बातें करता रहूँ। ये भी कोई उम्र है कि डेटिंग के चक्कर में पड़ा जाए? मैंने सारी ज़िंदगी सीधा रास्ता अपनाया था और मैं यही मानता था कि अच्छे मर्द सीधे निकाह की बात करते हैं। 3-4 साल किसी का वक्त बर्बाद नहीं करते, न दिल बहलाते हैं, न बातों में उलझाते हैं।
اور پھر آخر میں یہ نہیں کہتے کہ چلو شادی کر لیتے ہیں، یا پھر یہ کہ اب حالات ٹھیک نہیں۔ جب نیت شادی کی ہو تو بات بھی شادی کی ہی ہونی چاہیے۔ اسی سوچ کے ساتھ میں نے فیصلہ کر لیا، اگر انہیں میرا آنا عجیب لگا، اگر انہوں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں، تو میں صاف کہہ دوں گا کہ میں رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے ایک کام سے چھٹی لی، اور اس دن میرا دل عجیب سی خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کس حق سے، پتہ نہیں کس امید پر، لیکن میں خوش تھا۔ میں نے راستے میں اس کے لیے ایک تحفہ بھی خریدا، کوئی بہت مہنگی چیز نہیں، بس ایک سادہ سا تحفہ، اور ساتھ کچھ تازہ پھل بھی لے لیے، یہ سوچ کر کہ شاید وہ ابھی بھی کمزور ہو، شاید اسے صحت کی ضرورت ہو۔ گاڑی چلتی رہی اور میرے خیالات مجھ سے آگے بھاگتے رہے۔ کبھی میں سوچتا کہ وہ دروازہ کھولے گی، کبھی یہ خیال آتا کہ شاید اس کی ماں سامنے آ جائے، کبھی دل گھبرا جاتا، کبھی سینہ بھر آتا۔ میں خود پہ ہنس بھی رہا تھا، یہ میں ہی تھا جو کچھ ہفتے پہلے تک محبت کے تصور سے بھی دور تھا، اور آج کسی کے گھر کا پتہ لے کے تحفہ ہاتھ پہ پکڑے رشتہ مانگنے جا رہا تھا۔ محبت نے واقعی مجھے بدل دیا تھا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن میں یہ ضرور جانتا تھا کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ دل سے کر رہا ہوں، اور دل سے کیا گیا کام اکثر انسان کی قسمت بدل دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں ان کے گھر کے پتے پہ پہنچا، میں رک سا گیا۔ میں گاڑی میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ یہی گھر ہوگا یا نہیں۔ اندازہ میرا ٹھیک تھا، یہ ڈیفنس کالونی ہی تھی، اور یہی وہ علاقہ تھا جو فائل میں لکھا ہوا تھا۔ میں ابھی کنفرم ہی کر رہا تھا کہ اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور خوشبو باہر آ گئی۔ وہ خود کو ایک چادر میں لپیٹے ہوئے تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بہت زیادہ تیار تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی شادی میں جا رہی ہو۔ اس کے چہرے پہ میک اپ تھا، بال بنے ہوئے تھے، لباس نفیس تھا۔ اس لمحے میرے دل میں پہلا خیال یہ آیا کہ اس کی صحت ٹھیک ہو گئی ہے، اور یہ سوچ مجھے عجیب سا سکون دے گئی۔ وہ ٹھیک ہو چکی تھی، یہ اچھی بات تھی، لیکن اس کے ساتھ وہی دو عورتیں تھیں جو اس رات اس کے ساتھ آئی تھیں۔ انہیں دیکھ کے میرے دل میں عجیب سا خدشہ پیدا ہوا۔ ان کی شکلیں مجھے بالکل اچھی نہ لگیں، وہ بھی بہت زیادہ تیار تھیں، بلکہ کچھ زیادہ ہی۔ اتنا میک اپ آج کل کم ہی دیکھا جاتا ہے۔ خوشبو پھر بھی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن وہ دونوں مجھے بالکل بھی اچھی نہ لگیں۔ خیر، وہ تینوں گاڑی میں بیٹھ گئیں اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ میں اتنی دور صرف یہ دیکھنے کے لیے تو نہیں آیا تھا کہ وہ لوگ کہیں جا رہے ہیں۔ میرے اندر ایک بے چینی سی پیدا ہوئی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ دل میں یہی خیال تھا کہ کم از کم یہ تو پتہ چلے کہ وہ کہاں جا رہی ہیں۔ گاڑی چلتی رہی اور میں بھی اس کے پیچھے چلتا رہا۔ جیسے جیسے راستہ بدلتا گیا، میری حیرانی بڑھتی گئی۔ یہ لوگ کسی شادی ہال کی طرف نہیں جا رہے تھے، کسی بڑے فنکشن کی طرف نہیں جا رہے تھے، یہ لوگ کسی بنگلے کی طرف جا رہے تھے۔ ایک بڑا سا بنگلہ، اونچی دیواریں، بھاری دروازہ۔ جب وہ گاڑی اندر داخل ہو گئی، میں نے بنگلے کو غور سے دیکھا۔ یہ بالکل بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی شادی ہو رہی ہو۔ نہ روشنی، نہ شور، نہ کوئی ہلچل۔ میں نے خود کو سنبھالا، میرے کپڑے ٹھیک تھے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ گاڑی سے اترا اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے باہر لگا ہوا نام پڑھا، سلمان بصیر۔ میں نے چوکیدار سے کہا، سلمان صاحب اندر ہیں؟ چوکیدار نے جواب دیا، جی ہاں اندر ہیں۔ پھر اس نے فوراً کہا، لیکن آج وہ کسی سے نہیں مل رہے۔ میں چونک گیا۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ دل میں ایک سوال اٹھا کہ ابھی ابھی 3 عورتیں اندر گئی ہیں، تو وہ کون تھیں؟ چوکیدار نے کہا، آج ان کی سالگرہ ہے۔ اس نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر بولا، آج ایک پرائیویٹ ڈانس پارٹی ہے، شہر کی مشہور طوائف خوشبو کو بلایا گیا ہے، اسی لیے آج سلمان صاحب کسی سے نہیں ملیں گے، وہ بس اسی کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ یہ جملے میرے کانوں میں ایسے پڑے جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا میرے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ میرے قدم منجمد ہو گئے، میرا سانس رک سا گیا، میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یعنی جس لڑکی سے میں نے محبت کی تھی وہ ایک طوائف تھی، جو لوگوں کے گھروں میں پرائیویٹ پارٹیوں میں جاتی تھی، ڈانس کرتی تھی اور ان کے ساتھ رات گزارتی تھی۔ میں نے بے اختیار کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ چوکیدار نے بڑے فخر سے کہا، جی ہاں، ابھی ابھی جو اندر گئی تھیں وہی تھی خوشبو۔ اسے مزید کہا، اس کا دیدار تو بڑے نصیب سے ہوتا ہے، میں نے بھی آج دیکھ لی، سنا ہے اس کی آنکھیں نیلی ہیں، بڑی پیاری ہیں۔ بھائی کیا چیز ہے! وہ بولتا جا رہا تھا اور میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ میں نے زور سے کھانسی کی جیسے اسے خاموش کرانا چاہتا ہوں۔ وہ چونکا اور بولا، ویسے آپ کون ہیں؟ میں نے کہا، میں سلمان صاحب کا دوست ہوں، ان کو بتا دینا کہ میں آیا تھا۔ اس نے کہا، لیکن آپ نے اپنا نام تو نہیں بتایا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں تیزی سے مڑا اور واپس اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے اسٹیئرنگ پہ زور سے ہاتھ مارا۔ میرے اندر غصہ تھا، دکھ تھا،
शर्मिंदगी थी। जिस लड़की से मैंने मोहब्बत की थी वो ना शादी के काबिल थी, ना घर बसाने के काबिल, या शायद मैंने ही उसे गलत समझ लिया था। मैं गुस्से में था, मैं वहाँ से वापस चल पड़ा। मैं अस्पताल नहीं गया, हालांकि मुझे मालूम था कि मेरी नाइट ड्यूटी थी। मैं सीधा अपने फ्लैट आ गया। मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा मिला हो, और उससे बड़ा सदमा और क्या हो सकता था। पूरी शाम, पूरी रात और अगला पूरा दिन मैं उसी कमरे में पड़ा रहा। कभी सोचता, कभी हंसता, कभी रोता। मैं खुद से सवाल करता रहा, ये मेरे साथ क्या हो गया? ज़िंदगी में पहली बार किसी को पसंद किया और वो भीगता वाइफ निकली। ये ख्याल मुझे अंदर से तोड़ रहा था। फिर मैं अस्पताल गया। नाइट ड्यूटी थी, मैं खामोश था। नींद नहीं आ रही थी। आंखें खुली थीं और दिल खाली था। इसी तरह दिन गुजरते चले गए। जिन लोगों ने कुछ दिन पहले मुझे बहुत ज़्यादा खुश देखा था, अब वही लोग मुझे रोक रोक के पूछने लगे थे, आप उदास क्यों हैं? ऐसे परेशान क्यों लग रहे हैं? आंखों के नीचे हल्के क्यों बढ़ गए हैं? क्या हो गया है? मैं किसी को क्या जवाब देता? मैं खुद हैरान था। मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। मुझे मोहब्बत हुई भी तो किससे? और आखिर इस मोहब्बत की ज़रूरत ही क्या थी? मैं तो इससे पहले खुश था। मैं अपनी मैं तो इससे पहले खुश था। मैं अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ था, काम में डूबा हुआ था। तन्हाई ज़रूर थी लेकिन उलझन नहीं थी। अब तो मैं अंदर से उलझ चुका था। मेरे अंदर एक शोर था जो किसी को सुनाई नहीं देता था, लेकिन मुझे सोने नहीं देता था, मुझे चैन नहीं लेने देता था। मैं लोगों के बीच होता लेकिन खुद को अकेला महसूस करता। मैं हंसता लेकिन हंसी खोखली होती। मैं बात करता लेकिन दिल कहीं और होता। सबसे अजीब बात ये थी कि सब कुछ जान लेने के बाद भी वो मेरे ख़्यालों से नहीं जा रही थी। मुझे खुद पे गुस्सा आता था। मैं खुद से कहता कि ये सब ख़त्म हो चुका है, ये सब एक गलतफ़हमी थी, ये सब एक वहम था। लेकिन दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था। मोहब्बत ने मुझे अपने रंग दिखाए, और मोहब्बत ऐसी नहीं होती कि हकीकत सामने आते ही खामोशी से पीछे हट जाए। मोहब्बत हिसाब किताब नहीं करती। मोहब्बत ये नहीं देखती कि सामने वाला कौन है, क्या है, कहाँ से आया है। अगर मोहब्बत को ये भी पता चल जाए कि जिससे मोहब्बत हुई है वो बुरा इंसान है, वो गलत रास्ते पे है, वो शैतान है, तब भी मोहब्बत अपना रास्ता नहीं बदलती, तो फिर मेरी मोहब्बत कैसे बदल जाती? ये सवाल मुझे अंदर से खाए जा रहा था। मैं खुद से बहस करता रहा। एक तरफ दिल था जो अब भी खुशबू के नाम पे धड़क जाता था, और दूसरी तरफ दिमाग था जो चीख चीख के कहता था, ये मुमकिन नहीं है, ये गलत है, ये रास्ता कहीं नहीं जाता। मैं सोचता, अगर मैं इस रास्ते पे रहता तो इसकी मंजिल क्या थी? क्या मैं वाक़ई ऐसी लड़की से शादी कर लेता? क्या मैं अपनी माँ को ऐसी बहू ला देता? क्या मैं अपने गाँव, अपने ख़ानदान, अपनी पहचान सब कुछ दाँव पे लगा देता? ऐसी लड़की के लिए? ऐसी लड़की से कौन शादी करना चाहेगा? ये सवाल मेरे दिमाग में गूंजता रहा, लेकिन फिर दिल आहिस्ता से कहता, क्या उसका कसूर था? क्या तुमने उसकी कहानी जानी? क्या तुम जानते हो कि वो इस रास्ते पे क्यों आई? ये सवाल मुझे और ज़्यादा उलझा देता। मैं उसके बारे में सोचना नहीं चाहता था, लेकिन सोच खुद ही आ जाती। मैं काम में मसरूफ़ होता और अचानक उसकी आंखें मेरे सामने आ जाती। नीली आंखें, वही आंखें जिन्होंने मेरी पूरी ज़िंदगी उलट पुलट कर दी। मैं खुद से कहता कि ये सब ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन मोहब्बत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। कि वो मोहब्बत थी जो हासिल हुए बगैर ही ज़ख्म दे गई थी। मैं ना उसे अपना कह सकता था, ना उसे भुला सकता था। ये सबसे तकलीफ़देह हालत होती है जब इंसान किसी को चाहे लेकिन चाहने का कोई अंजाम ना हो। मैं लोगों से कतराने लगा क्योंकि हर सवाल मेरे ज़ख्म पे नमक छिड़क देता। आप ठीक तो हैं? आप बदल से गए हैं? मैं मुस्कुरा देता और बात बदल देता, लेकिन अंदर मैं टूटता रहता। मैंने पहली बार मोहब्बत को इतना ज़ालिम पाया था। ये मोहब्बत मुझे छोड़ के नहीं जा रही थी, हालाँकि मैं इसे खुद छोड़ना चाहता था। मैंने खुद से ये भी पूछा, क्या ये मोहब्बत है या सिर्फ़ एक फ़रेब? लेकिन दिल इसे मोहब्बत ही कहता रहा। मैं ये जानता था कि अगर मैंने इस रास्ते में कदम रखा तो अंजाम मेरे हक में नहीं होगा, लेकिन फिर भी दिल कहता था कि हर मोहब्बत अंजाम के लिए होती है। कुछ मोहब्बतें सिर्फ़ आजमाइशें होती हैं, और शायद ये भी ऐसी ही मोहब्बत थी जो मुझे तोड़ने आई थी। मुझे सिखाने आई थी कि हर खूबसूरत चीज़ तुम्हारी नहीं है, और हर पसंद तुम्हारी तकदीर नहीं बन सकती। ये वो दिन थे जब मैं सबके बीच हो के भी अकेला था। और शायद यही मोहब्बत की सबसे गहरी पहचान होती है। उस दिन मैंने एक फ़िल्म देखी, ऐसी फ़िल्म जिसकी कहानी बिल्कुल मेरी अपनी ज़िंदगी जैसी थी। एक मर्द, एक औरत, एक उलझन, एक गलत रास्ता, और आखिर में हीरो उस लड़की को अपना लेता है।
میں فلم ختم ہونے کے بعد کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ اسکرین بند ہو چکی تھی لیکن میرے اندر کہانی چلتی رہی۔ میں سوچنے لگا کوئی بھی لڑکی ایسی زندگی نہیں جینا چاہے گی، کوئی شوق سے اس دلدل میں نہیں اترتا۔ میں نے خود سے کہا ایک دفعہ جا کے بات تو کرنی چاہیے، اسے بتانا تو چاہیے کہ کوئی ہے جو اسے اس نظر سے نہیں دیکھتا، لیکن میں ڈرا ہوا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے اندر اتنی ہمت ہے یا نہیں۔ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میں اس سے اس کا جواب جاننے جا رہا ہوں کہ صرف اپنی محبت کو آزمانے جا رہا ہوں۔ دل میں عجیب سی کیفیت تھی، ایک طرف ڈر تھا، دوسری طرف امید تھی۔ آخر کار میں گھر سے نکل پڑا۔ وہ لوگ ڈیفینس میں رہتے تھے لیکن کام اسی علاقے میں کرتے تھے۔ قریب رہنے والے لوگوں کو شاید سب پتہ تھا، اور اگر پتہ نہ بھی ہو تو کوئی کسی کو روک نہیں سکتا۔ میں جب وہاں پہنچا تو دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ میں نے خود کو بڑا مضبوط دکھانے کی کوشش کی لیکن اندر سے میں نرس رہا تھا۔ میں اندر داخل ہوا، وہاں دو عورتیں بیٹھی تھیں۔ میں انہیں اس کی سہیلیاں سمجھ رہا تھا لیکن حقیقت میں وہ اس کی بہنیں تھیں، اور وہ ان کی چھوٹی بہن تھی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنی چھوٹی بہن سے یہ سب کرواتی تھیں اور خود بھی اسی راستے پہ چل چکی تھیں۔ میں نے ہمت کر کے کہا کہ مجھے نیلم سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے فوراً کہا پیسے لگیں گے، یعنی انہوں نے مجھے خریدار سمجھ لیا۔ میرے دل کو بہت ٹھیس لگی لیکن میں نے کچھ ظاہر نہیں کیا۔ میں نے قیمت ادا کر دی اور کمرے میں چلا گیا۔ اس لمحے مجھے یہ جان کے اور زیادہ تکلیف ہوئی کہ یہ لوگ گھر پہ بھی یہی کام کرتے تھے۔ میں اندر گیا، وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ بولی ڈاکٹر صاحب آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ بھی اس طرح کے کاموں میں پڑ گئے ہیں۔ اس کی آواز میں طنز بھی تھا اور دکھ بھی۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سب کچھ بتا دیا۔ میں نے بہت جلدی اپنی محبت کا اظہار کر دیا، پہلی ہی ملاقات میں۔ شاید یہ عجیب تھا لیکن میرے پاس وقت بہت کم تھا۔ وہ حیران رہ گئی، وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ کیا تم اس سے نکاح کرو گی؟ وہ ساکت ہو گئی۔ اس کے چہرے پہ یقین اور حیرت اکٹھے تھے۔ اسے یہ سمجھانے میں کہ میں واقعی اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں مجھے 2 گھنٹے لگ گئے۔ وہ بولی میں تو ہمیشہ سے یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ یہ دونوں میری بہنیں نہیں ہیں، انہوں نے مجھے سڑک سے اٹھایا تھا اور پالا تھا، یہی ان کا احسان تھا مجھ پہ، لیکن اب یہ مجھے استعمال کر رہی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا اگر میں تمہیں کہوں کہ میرے ساتھ نکاح کر لو تو کیا چلو گی؟ وہ خاموش رہی۔ پھر بولی ان دونوں کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا وہ بعد میں دیکھ لی جائے گی، تم یہ بتاؤ کہ تم چلو گی یا نہیں؟ اسے آہستہ سے کہا ہاں۔ پھر اس نے مجھے طریقہ بتایا۔ اس نے کہا آپ ان سے کہیں کہ مجھے ڈیٹ پہ لے جانا ہے، وہ الگ پیسے مانگیں گی لیکن مجھے آپ کے ساتھ بھیج دیں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں باہر گیا اور بالکل ویسے ہی کہا۔ انہوں نے زیادہ پیسے مانگے۔ ہنستے ہوئے کہنے لگی ڈاکٹر صاحب لے کے بھاگ جائیں گے ہماری بہن کو۔ میں نے کہا میں کہاں بھاگ جاؤں گا، آپ کو تو پتہ ہے میں کس ہسپتال میں کام کرتا ہوں۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی ہم تو آپ کے ہسپتال آ کے دھرنا دے دیں گے۔ میں مسکرا دیا لیکن اندر سے میں خود حیران تھا۔ مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا۔ میں خوشبو کو اپنے ساتھ لے کے نکلا۔ وہ خاموش تھی لیکن اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ ہم نے سیدھا جا کے نکاح کر لیا، کوئی شور نہیں، کوئی تماشا نہیں، صرف 2 انسان اور ایک فیصلہ۔ نکاح کے بعد اسے سیدھا اپنے گاؤں لے گیا۔ ان عورتوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرا گاؤں کہاں ہے۔ میں نے کبھی اپنے گاؤں کا ذکر ہسپتال میں بھی نہیں کیا تھا۔ گھر پہنچ کے میں نے ماں سے کہا یہ آپ کی بہو ہے۔ ماں خوش ہو گئیں، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ میں نے کہا کچھ دن یہ یہیں رہے گی اور میں بھی یہیں رہوں گا۔ اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب شہر واپس نہیں جاؤں گا۔ میں نے سوچا یہاں گاؤں میں ہی ہسپتال بنا لوں گا۔ یہاں بھی تو کوئی اچھا ہسپتال نہیں تھا، نہ ہی کوئی اچھا ڈاکٹر۔ میں نے اپنی زمین بیچ دی اور اسی گاؤں میں ایک اچھا سا ہسپتال بنا لیا۔ میں یہیں رہنے لگا خوشبو کے ساتھ۔ اس کی زندگی بدل گئی اور میری زندگی میں وہ جو ڈری ہوئی سہمی ہوئی لڑکی تھی آج ایک باوقار عورت تھی، اور میں جو اندر سے ٹوٹ چکا تھا آج سکون میں تھا۔ محبت نے میری زندگی بدل دی تھی لیکن یہ محبت آسان نہیں تھی، یہ قربانی مانگتی تھی اور میں نے وہ قربانی دے دی۔ شہر چھوڑ دیا، نام چھوڑ دیا، لیکن ایک انسان پا لیا، اور شاید یہی اصل کامیابی تھی۔ میری زندگی کی کہانی واقعی بڑی عجیب تھی۔ یہ صرف ایک محبت کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا سفر تھا جو مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتا تھا۔ زندگی نے اچانک ایک ایسا موڑ دکھایا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ لمحے، یہ حالات، یہ سب کچھ جیسے کسی خواب کی طرح تھے، لیکن حقیقت میں میری زندگی کے سامنے سب کھلے ہوئے تھے۔ خوشبو اب میرے ساتھ تھی، وہ میرے قریب تھی۔ ہمارے درمیان وہ سکون تھا، وہ اعتماد تھا جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں ہر روز اسے دیکھتا اور دل سے شکر ادا کرتا کہ یہ سب کچھ ہوا۔
ये लम्हा, ये कैफ़ियत, ये सुकून, ये सब कुछ मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो लोग हमारी ज़िंदगी में कभी मुदाखलत कर सकते थे, वो दोनों औरतें कभी भी हमें नहीं ढूँढ पाएँगी। वो ना जाने क्या सोचेंगी, और अगर किसी तरह वो हमें ढूँढ भी लें, तो किस हक़ से? कोई हमारे ताल्लुकात में मुदाखलत नहीं कर सकता था। मैं दिल से मुतमईन था कि हमने अपनी ज़िंदगी खुद मुंतखब की, किसी के दबाव या खौफ की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ़ अपनी मोहब्बत, अपनी सोच और अपने फ़ैसले से। ये सब कुछ करने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं किसी से भी नहीं डरता, ख़ास तौर पे ऐसी औरतों से तो बिल्कुल भी नहीं, जो किसी लड़की को उसके माज़ी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही हों। खुशबू के साथ ये सब ख़त्म हो गया। मेरी माँ सबसे ज़्यादा खुश थी। मैं जब गाँव वापस आया और माँ ने खुशबू को देखा, उसके चेहरे पे जो खुशी और सुकून था, उसे देख के तो मेरा दिल भी भर आया। माँ कहती थी, तूने शादी भी कर ली और ये लड़की भी वापस गाँव ले आई। माँ की खुशी, उस चेहरे की रोशनी मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इनाम थी। वो दिन, वो लम्हा मेरी मोहब्बत के तमाम ख्वाबों का एक हकीकी रूप था। मैंने अपने आप से कहा कि ये सब कुछ हासिल करना, ये सब ख्वाब हकीकत में बदलना वाक़ई ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है, और मैं वाक़ई खुशकिस्मत था। मैं डॉक्टर था। मेरा काम था लोगों का इलाज करना, लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता कि मेरे पास सिर्फ़ जिस्म का इलाज करने की ताकत नहीं, बल्कि रूह के ज़ख्मों को भी छू के ठीक करने की सलाहियत थी। खुशबू की रूह पे जो ज़ख्म लगे थे, उन ज़ख्मों को देख के मैंने ये समझा कि इंसान की मोहब्बत और ध्यान कितनी बड़ी ताकत रखते हैं। मैंने महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ़ दिल की नहीं, बल्कि रूह की भी ज़रूरत है। हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया। हर दिन, हर लम्हा, हर सांस में वो खुशी थी जो मैंने कभी पहले महसूस नहीं की थी। खुशबू के साथ हर सुबह नई उम्मीद के साथ शुरू होती, हर शाम में खुशगवार सुकून के साथ ख़त्म होती। हमारी बातें, हमारी हँसियाँ, हमारी छोटी-छोटी झड़पें, ये सब कुछ अब मेरे लिए सबसे कीमती लम्हे थे। मैंने अपने अंदर ये अज़म पैदा किया कि अब शहर की किसी हंगामा खेज़ी में नहीं जाऊँगा। यहाँ गाँव में खुशबू के साथ ज़िंदगी गुज़ारना ही मेरी असल कामयाबी थी। मैंने अपने गाँव में अस्पताल बनाया ताकि लोग इलाज हासिल करें और मैं उनकी खिदमत कर सकूँ। यह अस्पताल ना सिर्फ़ जिस्म के इलाज के लिए था, बल्कि उन रूहानी ज़ख्मों के लिए भी था जो कभी-कभी इंसान के अंदर चुपके से दर्द देते हैं। मेरी ज़िंदगी अब एक मकसद के साथ जुड़ी थी, और खुशबू के साथ ये सफ़र एक मुकम्मल हकीकत बन गया। मैंने सोचा, और आज भी सोचता हूँ, कि मेरी मोहब्बत ने सिर्फ़ खुशबू को नहीं बचाया, बल्कि मुझे भी एक नया इंसान बनाया। मैं पहले भी डॉक्टर था, पहले भी मेहनत करता था, लेकिन अब मेरे अंदर एक नई ताकत थी। ये ताकत मोहब्बत की थी, एतमाद की थी, और ये यकीन कि हम अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद कर सकते हैं। खुशबू के साथ में जब भी मैं बाहर जाता, मुझे एहसास होता कि हमारी मोहब्बत ने हमें वो सब कुछ दिया जो दुनिया की दौलत और शोहरत भी नहीं दे सकती। हमारी ज़िंदगी आज़ाद थी, हमारे फ़ैसले हमारे थे, और सबसे अहम बात ये थी कि हम एक दूसरे के साथ मुकम्मल थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में ऐसा सुकून हासिल हो सकता है, लेकिन खुशबू ने ये मुमकिन बना दिया। मैं अक्सर माँ के साथ बैठता और उसके चेहरे पे खुशी देख के अपने दिल को सुकून देता। माँ कहती, बेटा तुमने अपनी ज़िंदगी खुद सँभाली, तुमने अपनी मोहब्बत को सच्चा बनाया, और ये लड़की भी तुम्हारे साथ खुश है। मैं जानता था कि माँ की खुशी में मेरी सबसे बड़ी कामयाबी छुपी हुई थी। अब मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ खुशबू थी, मेरी खिदमत थी और मेरी मोहब्बत। मैं हर मरीज़ के साथ अस्पताल में खड़ा होता, हर ज़ख्म को देखता, हर दर्द महसूस करता, लेकिन खुशबू के साथ हर दिन एक खुशी और सुकून के साथ मुकम्मल होता। मैं जानता था कि जो ज़ख्म रूह पे लगे थे, उन्हें मोहब्बत और एतमाद के ज़रिए ठीक किया जा सकता है। खुशबू की ज़िंदगी भी बदल गई। वो अब ना सिर्फ आज़ाद, बल्कि खुश थी। उसकी हंसी, उसकी आंखों की चमक, उसकी बातों की मिठास, ये सब कुछ मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। हम दोनों के दरमियान जो सुकून और एतमाद पैदा हुआ, वो किसी भी कीमती चीज़ से बढ़ के था। मैंने सोचा कि मेरी ज़िंदगी की कहानी, मेरी मोहब्बत की कहानी वाक़ई अजीब थी। ये सिर्फ़ इश्क की कहानी नहीं थी, बल्कि एक इंसान की जुर्रत, उसके फ़ैसलों और उसके दिल की ताकत की कहानी थी। मैंने अपनी मोहब्बत को आज़माया, अपने दिल को सँभाला, और आखिरकार खुशबू के साथ एक नया आगाज़ किया। मैं जानता हूँ कि कोई भी हमारी ज़िंदगी में नहीं आ सकता। किसी की धमकी, किसी की इंतकाम, किसी की परेशानी के बावजूद हम अपने रास्ते पे साबित कदम हैं। हमने अपनी मोहब्बत को हकीकत बनाया और एक दूसरे के साथ ज़िंदगी के हर लम्हे को जिया। मैं डॉक्टर था, मेरा काम था लोगों की खिदमत करना, लेकिन सबसे बड़ी खिदमत ये थी कि मैं खुशबू के दिल को, उसकी रूह को और उसकी ज़िंदगी को महफूज कर सका। ये एहसास, ये सुकून, ये खुशी, ये सब कुछ मुझे वो सब कुछ देता था जो दुनिया की सब दौलतें भी नहीं दे सकती। मेरी ज़िंदगी वाकई मुकम्मल हो चुकी थी। खुशबू के साथ, गाँव में, अपने अस्पताल के साथ, अपनी माँ की खुशी के साथ, मैं दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा मुतमईन था।
میری محبت، میری جرأت، میرا ایمان، یہ سب کچھ میرے ساتھ تھا اور میں جانتا تھا کہ میں کبھی بھی اس سب کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے زندگی کو پایا تھا، محبت کو پایا تھا اور خوشبو کے ساتھ وہ سب کچھ پایا جو انسان کی اصل ضرورت ہے۔ میری زندگی کا یہ آخری باب محبت، اعتماد اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ میں خوشبو کے ساتھ اور خوشبو میری زندگی کے ہر لمحے میں تھی اور اسی کے ساتھ میری کہانی مکمل ہوئی۔